तक ये हादसा हमारे दरवाज़े पे दस्तक नहीं दिया तब तक हमको भी नहीं पता था कि जल दुर्घटनाएँ, ये ड्राउनिंग है, ये कितनी बड़ी विकराल समस्या है हमारे समाज में। जजमेंट लगाते हैं लोग, बोलते रहते हैं तमाम, हर एक आदमी अपनी राय अपनी मतलब वो रखता है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि कहीं पानी जो है मतलब ऐसा अंदर गुफा है उसकी, उसके अंदर समझ आता है वो, तो निकलना मुश्किल होता है, ऐसा मानना है। हर साल कुछ ना कुछ होता ही है। इतना सुरक्षा होने के बाद भी यहाँ पुलिस प्रशासन रहता है, गश्ती हमारे फॉरेस्ट की गाड़ियाँ जाती है, और फिर भी बच्चे मानते नहीं। हम लोग निकले, उसके बाद फिर पानी में नहाने चले जाते हैं। आज ही मैंने 4 लोग भगा, इतने इतने से बच्चे नहा रहे थे। अब क्या बता, जबकि मैंने समझा कि अभी 1 महीना पहले ही 3 लड़के मरे। 15 दिन भी नहीं हुआ, 3 बच्चे मर गए हैं। उनको मना करते हम लोग यहाँ से, जैसे नहीं से इधर जाते या इधर जाते, हम लोग बताते भी हम लोग कि बेटा इधर मत घुसो, इधर क्या है मौत का कुआं है। पानी के किनारे जाते ना, वो जाने की कोशिश भी नहीं करे। जब भी उनका इच्छा हो जाती है कि हम पानी के अंदर नहाए, मतलब वो अंदर जैसे बहुत सारे मर गए, 16, 17, 18 ऐसे में बच्चे मर गए, तब पता नहीं उनकी आत्मा किस लेगी कि क्या कर लेते। ये तो ऐसे थोड़ी होता है कि अपने आप 3 बच्चे एक साथ मर जाए। 21st March 2015, and sadly it was the most unfortunate day जिस दिन हमारा न्यू ईयर था। इट वाज अ गुडी पाड़वा, वी आर महाराष्ट्रियंस। तो उस न्यू ईयर डे पे हमारे ऐसा इतना बड़ा हादसा हो गया, जो के बारे में बात करना भी बहुत मुश्किल लगता है आज भी। अभी पिछले हफ्ते भी तो 3 की मौत हुई है। 3 की हुई है, उसमें एक हमारे ऑफिस के चौकीदार का लड़का है, और स्पेशली वहाँ एल्कोहल लिया तो फिर पूछो ही मत, मुश्किल ही है कि कोई बच क्या जाए। और इस तरह ज़्यादा रहते जाते हैं उधर तो पिकनिक पार्टी वगैरह हो जाती है, तो उसमें तो कुछ बच्चे ऐसे मनचले होते हैं कि वो ना वहीं पहुँचना है उनको, हो जाती है दुर्घटना ऐसी। See, initially it was just that these children had come home and they were planning to go to the main station to see a friend of उनके school friends जा रहे थे, so they got the permission, and all the children, even the other parents knew that children were going to the station after going to Mandar's place, but they had time in between, so that's why they decided to go to Kolar and that area. So we were quite okay. We had accepted that he's going there, and he was ready with his helmet and things like that. He had a license with him, the learner's license. So that way he was fully prepared. Like, he was not an irresponsible child that we called, no. So we were okay, satisfied with all the stuff that he's ready to move out, and we met him that day. And after that we got this news. So it was like, since there was no range over there, we didn't get the news immediately. We got it a little late. So maybe sometimes we do feel that somebody would have helped him there if it was possible. But it's destiny. It had to happen. But I must say these children really worked hard on trying to rescue him and the other friend. We did reach there on time, but it was late, like in the sense that they had already found his body, and he was one child who very, kind of very different from the others. Like once he had told us he wanted to donate his eyes and his parts of the body and all. So we did try to fill that form. We submitted the form, but then the doctors didn't accept it because he was in the water for a long period of time. So that was one thing that we couldn't fulfill. And as his friends say, he was a very jovial kid, and we also know that he was very energetic, and he always loved music, and he used to sing well. You call a chatterbox kind. He would share everything that happened in school with full action, and he wanted to try out all the vehicles, and he was very aware of the automobile industry, like especially the cars. Even in the dark, if you show him a car, he would tell you the description and the price of the car and the make and everything. And he was one person who was very true as a friend. I think Bittu would know better. That's it.
So all these things keep playing in our mind. And then we realize that these children are not irresponsible that way. So something must have occurred at that place which really, this what do you say? This accident wouldn't have happened otherwise. So that's why we started thinking on that, we accept that we have to work on that particular thing and make sure that something like this doesn't happen again. हम एज सिटीज़न्स जो भी काम करना चाहते हैं कभी सोशल वर्क के लिए, पर्सनली हम लोग इन्वॉल्व रहे हैं एनिमल वेलफेयर वर्क से और कुछ एजुकेशन, कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों के एजुकेशन के लिए, और इतना सारा क्षेत्रों में काम किया है। लेकिन जब तक ये हादसा हमारे दरवाजे पे दस्तक नहीं दिया तब तक हमको भी नहीं पता था कि जल दुर्घटनाएँ, ड्राउनिंग है, ये कितनी बड़ी विकराल समस्या है हमारे समाज में। और एज अ प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाइड या मेड अवेयर ऑफ रखी नहीं गई, कभी हमारे एजुकेशन में भी नहीं है। हमारे कभी भी, चाहे हम पुलिस क्षेत्र की बात करें, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की बात करें, तो इस पर जिस तरह का फोकस होना चाहिए वो कभी है नहीं। तो हमें भी ये नहीं पता था कि जिस दिन हमारे हादसा हुआ तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब जिस दिन 21 को ये इंसिडेंट हुआ, 22 को फ्यूनरल था और 23 को हम लोग गए थे होशंगाबाद में, सब एशेस नर्मदा को समर्पित किए, अस्थि विसर्जन किए। और 4th डे हम लोग वहाँ थे साइट पर। 4th डे से इसका काम शुरू हो गया है। अब आप क्या सोचेंगे कि कोई अग्रीव फैमिली और जो ऑलरेडी जो सोच भी नहीं सकती थी उस समय, इतने इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट थे, हम क्या स्ट्रेटजी करते, क्या प्लान करते। इसलिए हम कहते हैं वो थॉट नहीं था, थॉट इतना था बस कुछ करना है। एंड 4th डे इटसेल्फ वी हैड स्टार्टेड दिस वर्क। तो 4th डे जब वहाँ पे गए थे तब और ध्यान में आया कि यहाँ पे लोग बताते हैं 150 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है उसी स्पॉट पे। तो हमको भी लगा कि इतना बड़ा है तो ये नंबर है, वहाँ लिखा है कि इतने लोग डूब गए हैं, तो मंदार शुड नॉट जस्ट रिमेन अनदर स्टैटिस्टिक और अ नंबर कि अब इतने हो गए, एक और हो गया। तो वो चेंज करना ज़रूरी था, आगे हादसे न ये करना ज़रूरी था। तो इसी तरह से वो काम शुरू हुआ। और जब वहाँ पे हमने सर्वे किया कि वहाँ पे क्या क्या करने की आवश्यकता है सेफ़ बनाने के लिए उस वाटर बॉडी को, तो काम करते करते जब लोगों से मिले, गांव वालों से मिले, वहाँ पुलिस से मिले, तो पता चला था कि मंदार के 15 दिन पहले ही मिड मार्च में कहीं वहाँ पे एक BHEL के स्विमिंग पूल के कोच की भी डूब के डेथ हुई उसी स्पॉट पे। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर अस कि जहाँ पे स्विमिंग कोच डूब सकता है। हमें लगता था मंदार डिडंट नो स्विमिंग, तो ये और रिस्क हो गया, सब हो गया। लेकिन जहाँ कोच डूब सकता है वहाँ पे हम क्या सोचे कि मंदार फुल स्टॉप एंड नो मोर। तो हाउ डू वी पुट दैट फुल स्टॉप वेयर इवन स्विमिंग कोचेस और स्विमर्स आर ऑल्सो ड्राउनिंग। टेम्पररीली उसको डी वाटर किया और तब ये पता चला कि उसका जो डेप्थ है वो अनइवन है। उसकी जो तली है वाटर बॉडी का बॉटम एरिया सरफेस, वो एक तरफ तो 4-5-6 फीट हाइट का था जहाँ पे सब बच्चे खेलते हैं, जहाँ ज़्यादातर लोग जिस एज पे रहते हैं, और दूसरी तरफ वो स्लैंट ऐसा आता है तो दूसरी तरफ 18 से 22-23 फुट तक का उसका डेप्थ था। तो वाटर लेवल ऊपर एक रहता है लेकिन तली ऐसी रहती है। इवन मंदार वॉज फाउंड ऑन द अदर एंड ऑफ द वाटर बॉडी वेरी ड्राउन। जहाँ वो खेल रहे थे, the गोताखोर, the swimmers, they were searching for him over there. Nobody realized that he was at the other end of the water body. Slope था, तो he was found at the other side. तो पूरा उसका जो स्लूज गेट बोलते हैं जहाँ से आउटलेट होता है वाटर, उसमें भी पूरा पॉलीथीन, कचरा, सिल्ट, कभी सालों से सिल्ट भी साफ़ नहीं हुई थी वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे एक वाइट शेप का ट्रेंच बनाया जिससे तीनों तरफ से का पानी एक जगह से आउटफ्लो हो जाए, पूरा आगे तक का सारा उसका पैसेज जहाँ ब्लॉकेज थे पूरा साफ़ करवाया ताकि वाटर लेवल बढ़े नहीं। जहाँ स्टैग्नेशन है वहीं वाटर लेवल बढ़ेगा, तो फिर फ्लो बनता चला गया तो वाटर लेवल हुआ नहीं। उसके अलावा जो गहरे गड्ढे थे उनको भी भरा, और बाकी लेवल करने के लिए हमने बड़े बोल्डर्स को
लॉक किया आपस में, उसको पूरा इवन This कर is दिया the था। spot, no? Yeah, this is the same This is the spot. water bodies that we are talking about. We dewatered the whole thing, not a drop was left behind. To make sure that we are able to understand what needs to be done. ऐसे ऊपर से आप देखो तो you never know how deep it is. Because swimming in a swimming pool is very different from that of a pond or a water body. So, keeping in mind, we have to make sure that the slum children are taught the way they know to swim, no? And then saving one's own life, they should know how to save oneself. And see, most of the accidents that have taken place are when you go to rescue another person, you drown yourself, no? Because that person who's drowning, when he pulls you or her, you get yourself drowned. So you should know how to rescue yourself and the others. Likewise, bystanders, they should know CPR. So if I don't know to swim, at least I know how to give a CPR. So many things are involved in it. It's just not that okay, one place is safe. तो चैलेंजेस यही हैं कि ये प्रॉब्लम उतनी आइडेंटिफाइड नहीं है। लोगों को लगता है कि ये शायद पर्सनल लेवल पे हम कर रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ड्राउनिंग डेथ्स होती हैं इन इंडिया। यदि हम बात करें तो इंडिया में भी अराउंड 35,000 डेथ्स एवरी ईयर होती हैं, जो कि बहुत अंडर रिपोर्टेड है। कितने सारे इंसिडेंट्स तो हैं जो ऐसे गांव में, रिमोट एरियाज़ में, कुएं में, बावड़ी में, तालाब नदी में बच्चे बह जाते हैं, डूब जाते हैं। तो वो फिगर वैसे ही बहुत कम है, लेकिन इसके बाद भी इतना है कि इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है और किया जा सकता है। और इस मिशन ने जब केरवा में काम किया, उसके बाद पाताल पानी में काम किया। वहाँ पे भी पाताल इज अ प्लेस नियर इंदौर, महू एक जगह है, वहाँ पे है। इट्स अ वेरी ह्यूज वाटर फ्लो एंड उस वाटरफॉल में बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। कंप्लीट एक फैमिली पूरी बह गई थी। देयर आर सो मेनी वीडियोस इफ यू चेक ऑन द यूट्यूब। So then we decided, okay, one spot is ready, we made it risk free. Then we sort of are planning now for further things to be done at other places. Because you find Bhopal so many water bodies and you can't restrict children at home. You can't stop anybody from saying, no, don't go there. Go there but be safe. Take your own precautions, no? You shouldn't deprive anybody from the entertainment they want. So let's make it safe and then let you enjoy and we too enjoy. That kind of a feeling should be there. From childhood, children should know what is safe and how they can keep themselves safe. Because you won't find children climbing an electricity pole. Because they know from childhood कि यहाँ पे शॉक लगता है, हाथ लगाओ तो। वैसे ही पानी के पास मत जाओ तो you shouldn't go. Or if you're going, make sure that the place is safe. That's how it all began.